students, these are the keywords of the chapters nutrition in plants. The first keyword is autotrophic. Autotrophic is a mode of nutrition in which an organisms prepare their food themselves is known as autotrophic. Okay. Next is chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present on the leaves of the plant which capture the sunlight and passes it to the leaves for the process of photosynthesis. Okay, that is chlorophyll. What is heterotrophic? Heterotrophic is the mode of nutrition in which an organisms can't prepare their food themselves and depends upon autotrophs. Okay. Next is host. Host is a plant or an organisms who provides the foods to the parasitic organisms is known as host. What is insectivorous? Next, insectivorous is a plant or organisms who depends on insects for their nutrition is known as insectivorous. Next is nutrients. Nutrients is the component of food which is necessary for our body is known as nutrients. What is nutrition? Next question. Next is nutrition. The process of taking foods and utilization of that foods in the body is known as nutrition. Next is what is parasite. So the parasite is an organism who lives on or inside the other plants or organisms for their nutrition. Okay, that is known as parasite. Next is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which green plants make their food themselves in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, by the action of carbon dioxide, water, who prepares carbohydrates and oxygen. We can write chemical reaction also, that is 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2. 6CO2 means carbon dioxide, 6H2O means water, and as a catalyst ले लेंगे हम sunlight और chlorophyll और हमें क्या प्राप्त होगा C6H12O6, ठीक है, और प्लस 6O2. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, C6H12O6 को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, और 6O2 को हम ऑक्सीजन कहेंगे. ठीक है. Next is what is saprotrophs. Saprotrophs is an organisms who get their foods on dead and decaying matter. Okay. Next is what is saprotrophic. Saprotrophic is the mode of nutrition in which an organisms get their nutrition from dead and decaying organisms. Okay. What is stomata? Stomata is the tiny pores present on the leaves which exchange gases, which capture carbon dioxide and releases oxygen. Okay, I hope the keywords is clear now. Let's discuss about the question answer. Okay. Here the first question is, why do organisms need to take foods? Why do organisms need to take foods? Organisms need to take food for the body growth, to get energy and to repair the damaged part of the body. Okay. Here the next question, distinguish between the parasites and saprotrophs. Parasites is an organisms who get their foods on living organisms. Yeah, who get their food from living organisms. Okay. Example kaskata या अमरबेल. ठीक है. Next is saprotrophs. Saprotrophs is an organisms who get their foods from dead and decaying organisms, dead and decaying matter or organisms. Example, fungi. Okay. Next is, how do you taste the presence of the starch in leaves? Okay. We can taste the presence of starch in leaves by iodine test. Okay. Take a leaf, boil it into ethyl alcohol, put 2 drops of iodine into it. Okay. The color of leaf becomes blue-black. Okay. This color shows that the starch is present on the leaves. Okay. Next question is, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. एक brief description देना है photosynthesis का. तो brief description में क्या लिखेंगे? Photosynthesis is a process
in which green plants make their food themselves in the presence of sunlight and chlorophyll by the action of carbon dioxide, water and oxygens, and prepare carbohydrates or glucose. Okay, here is a chemical reaction. अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो chemical reaction आप लिख सकते हो 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2. Okay. Next question is, so with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. Okay. So plant is the ultimate source of foods. We can show this by figures of food chain. Okay. तो फूड चेन का फिगर में हम शो करेंगे. सबसे पहले ग्रास का फिगर ड्रॉ करेंगे. ग्रास के बाद एक ग्रास हॉपर बनाएंगे. ग्रास हॉपर के बाद एक रैट बनाएंगे. रैट के बाद स्नेक बनाएंगे. स्नेक के बाद हॉक बनाएंगे. हॉक मींस ईगल. ईगल के बाद फंजर. ठीक है. अब देखिए इसका प्रोसेस समझिए. ये ग्रास क्या होता है? ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है. ओके. ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? रैट खाएगा. रैट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा. स्नेक को कौन खाएगा? हॉक यानी कि ईगल खाएगा. अब ये ईगल जो है मर जाएंगे जब, तो क्या होगा? इनमें जो है सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल में. और जैसे ही न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉइल जो है और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा. सॉइल जब फर्टाइल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें फिर से ग्रास प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से उसे ग्रास ऊपर खाएगा, फिर से रैट, फिर से स्नेक, फिर से ईगल. ठीक है. यानी कि ये साइकिल चलता रहेगा. दिस फिगर शोज that the plant is ultimate source of energy. Okay. Next question is, green plants are called dash since they synthesize their own food. Is a fill in the blanks. ठीक है. Green plants are called dash. यानी कि green plants को autotrophs कहेंगे since they synthesize their own food. जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम autotrophs कहते हैं. तो यहाँ पे autotrophs होता है. नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज. ठीक है. तो जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के द्वारा वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो एज ए स्टार्च स्टोर होता है. तो यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉइल. सोलर एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोफिल कैप्चर करता है. यहाँ पे आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. ठीक है. यहाँ पे एक में कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में ऑक्सीजन होता है. नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग पैरासाइटिक प्लांट्स विद येलो स्लेंडर्स एंड ट्यूबुलर स्टेम. ठीक है. पैरासाइटिक प्लांट्स वो होता है प्लांट, यहाँ पैरासाइटिक प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है. येलो कलर का है और ट्यूबुलर स्टेम है. ठीक है. ट्यूबुलर स्टेम और येलो कलर का, दैट इज कस्कटा. ओके. तो इसका आंसर कस्कटा हो जाएगा. A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, that is pitcher plant. ठीक है. pitcher plant में दोनों ऐसे autotrophic भी होता है और heterotrophic भी होता है. मैंने बताया था partial heterotrophic वो कहते हैं क्योंकि वो green plants होता है. green plants वो photosynthesis का प्रोसेस भी खुद कर सकता है और अपने न्यूट्रिशन के लिए वो insects को भी ट्रैप करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द pores through which leaves exchange gases. ऐसा pores जिससे leaves जो है गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कि स्टोमाटा. Okay. Next is tick the correct answer. Hammerbell is an example of autotrophs, parasite, saprotrophs and host. So Hammerbell is the Hindi name of Kaskata. तो Kaskata किसका example था? Parasite का. यहाँ पे आंसर parasite है. Next question is the plant which traps and feeds on insect is, जो प्लांट को पकड़ता है और खाता है उस प्लांट को क्या कहते हैं? जो इंसेक्ट्स को पकड़ता है और खाता है उस प्लांट को क्या कहते हैं? पिचर प्लांट. ओके. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला है क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल किसके साथ मैच होगा? तो क्लोरोफिल होगा लीफ के साथ मैच. ओके. नाइट्रोजन नेक्स्ट है. नाइट्रोजन किसके साथ? तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया के साथ मैच होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में. ठीक है. नेक्स्ट है अमरबेल. अमरबेल किसका एग्जांपल है? तो पैरासाइट का एग्जांपल है. ठीक है. क्योंकि अमरबेल इज द हिंदी नेम ऑफ कस्कटा. कस्कटा इज एग्जांपल ऑफ पैरासाइट. ओके. नेक्स्ट है एनिमल्स. एनिमल्स क्या होता है? खुद अपना भोजन खुद ही क्रिएट करता है. तो क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स होता है. तो हेटरोट्रॉप्स हो जाएगा. नेक्स्ट है इंसेक्ट. इंसेक्ट को कौन खाता है? पिचर प्लांट. तो उसका आंसर पिचर प्लांट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स.
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज होता है? नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, उसको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं? नहीं, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, तो ये जो है ट्रू होगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को जो क्लोरोफिल कैप्चर करता है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है, यानी कि इसमें 2 फॉल्स है और 2 ट्रू है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका मतलब है कौन सा प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड्स को कैप्चर करता है, तो इसका आंसर स्टोमाटा हो जाएगा। ओके, स्टोमाटा इज अ टाइनी पॉस व्हिच कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लिप्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, किससे? लिप्स से। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर एंड कीवर्ड्स आपका आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।